सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर बिहार सर। Good, good, very good. Happy to see you. Early morning. थैंक यू सर। जय हिंद। सभी सर को जय हिंद सर। सभी को जय सभी हिंद, मैम सभी को को जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद जी, जय हिंद। He is Colonel S.K. Singh. He is joining from Sitamarhi, and he is the general secretary of the veterans group. You know, veterans group is, you must be knowing, the all army officer, retired army officers. So he is heading Bihar, and he is number 2 in Bihar as far as veterans group is concerned. So welcome, Colonel S.K. Singh. थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सुशांत सिंह की वजह से। Yeah. Our chief guest has joined, Mr. Abhay Narayan Tripathi. So I'm going to start the meeting. First thing, I will request all. I'm going to mute everybody, and then I will be starting. 1 minute, please. Yeah. May I have your kind attention, please? This is Colonel K.C. Mishra, VSM, President, Rotary Club of Pune Riverside. At the outset, I would like to welcome all participants attending the meeting today so early morning. Meeting is streaming live now on Facebook page of Rotary Club of Pune Riverside. Thus request all members to be little careful. Meeting is scheduled for 1 hour. It is going to start sharp 8:35 and will conclude at 9:35 positively. Please allow me to share logistic and protocol of Zoom meeting now. Friends, there are certain etiquettes of online Zoom meeting which are to be followed very meticulously. I will be highlighting these one by one before we proceed further. I have already muted all. Participants are requested to add their name, contact number and email ID to the chat box so that recording of this meeting can be sent to them. Participants are also requested to check participants list and ensure that their names are there. It is very important for all of us and other participants to know your identity. As the meeting progresses, speakers are requested to unmute themselves before they start speaking and mute immediately after they stop talking. Please use chat box to post your queries and questions. These will be addressed by esteemed speakers immediately after his talk is over. Participants may also like to raise their virtual hands during question answer session, which will be taken by esteemed speaker one by one. I am going to call the meeting to order. Meeting is called to order. प्रथाएं या लोक प्रचलन में जो रीति रिवाज है जिसको राइचुअल कहते हैं, प्रथा और परंपरा। परंपरा जब बहुत दिन तक चलती है तो प्रथा हो जाती है। यह लीगल इंटरनेशनल लॉ में भी इसको जो है एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि प्रथाएं लॉ का एक रूप है। प्रथा, परंपरा और रीति रिवाज तीनों जो हैं हर प्रकार की पूरे विश्व में जितने जहां जहां संविधान है या जहां जहां रूल ऑफ लॉ के हिसाब से शासन किया जाता है, वहां प्रथाएं, परंपराएं और राइचुअल, जिसको आप कह लें कि नियम या कह लें कि जो लोक प्रचलन, रीति रिवाज है, इसको जो है मान्यता मिला हुआ है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पहले इसी के आधार पर 1945 के पहले ICJ जब नहीं था, जब आर्बिट्रेशन के आधार पर जब निर्णय होता था तो रीतियां, परंपराएं और प्रथाओं पर ही ध्यान दिया जाता था, उसी आधार पर निर्णय भी दिए जाते थे। हमारे यहाँ भी अंग्रेजों के आने के पहले मुख्यतः प्रथा, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर ही सारी, मतलब जो कुछ, चाहे वो गवर्निंग का सिस्टम हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे व्यक्तिगत व्यवस्था हो, उसी मापदंड पर इसको कसा जाता था। आज जो लिखित कानून है पूरे देश में, पूरे दुनिया में लिखित कानून है, एक सर्वोच्च कानून भी है
लेकिन वो सब कानून भी प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को मान्यता देते हैं। जितने हमारे वैयक्तिक नियम हैं, जिसको कह लें कि फैमिली लॉ हैं, सब जो है प्रथा और परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। थोड़ा एक विषयांतर मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी महामारी जो पैंडेमिक है इसी पर आना चाहता हूं। मैंने बताया कि प्रथा और परंपराएं जब बहुत दिन तक चलती रहती हैं तो प्रथा हो जाती हैं। इसी प्रकार से रीति रिवाज जो हैं वो भी जो है एक प्रथा का रूप ही है। मतलब प्रथा एक सेट है, परंपराएं, रीति रिवाज एक सबसेट है। जहां तक भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको हम जांचें या इसको हम एक मानदंड, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका एक मानदंड हम स्थापित करें तो हमको दो प्रकार के साहित्य मिलते हैं। एक साहित्य है जो कि लोक साहित्य है, जो कि बहुत पुराना है, जिसमें कि परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज जीवित रहता है। और एक जो लिखित साहित्य है, लिखित साहित्य जो होता है उसी से, क्योंकि रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यह जो है जीवित तो रहती ही हैं, लेकिन इसको जो लिपिबद्ध किया जाता है, जिसको कोडिफाई किया जाता है, उसको लिखित साहित्य कहा जाता है। लिखित साहित्य के विषय में देखें तो सबसे बड़ा, मतलब जो सबसे पुराना लिखित साहित्य हम वेद को पाते हैं। वेद कोई मतलब एक किताब नहीं है, या वेद कोई ऐसी चीजें नहीं है कि किसी ने उसको जो है ऊपर से, या ईश्वर प्रदत्त चीज है, ऐसा नहीं है। वेद और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर भी, वेद जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भी वेद से ही ईश्वर का भी संचालन होता है। इसको प्रकृति हम कह लें, ऑलमाइटी कह लें, वो भी वेद क्या है? ज्ञान है। अब ज्ञान जो है कहाँ है, कैसे है? ज्ञान तो हर सर्वत्र है, हर जगह है। कोई भी हो, जीव भी हो, जंतु भी हो, सबके पास ज्ञान है। प्राणियों के पास भी, सभी प्राणी मात्र के पास ज्ञान है, और प्राणी मात्र के अलावा भी ज्ञान सब में है। जो निर्जीव है उसमें भी ज्ञान है। अब उस प्राणियों में जो ज्यादा ज्ञान वाला है, वो इस ब्रह्मांड में, इस ग्लोब ब्रह्मांड की बात करते हैं, जो तरंगों के आधार पर, तरंगों के माध्यम से जो ज्ञान संचरित है, उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति किसके पास है? तो सबसे पहला जो ग्रहण तो किया गया शक्ति, जैसे हमने बताया कि प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, ये भी एक ज्ञान है। किसान खेती करता है, उसको भी ज्ञान नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएगा। कब पानी देना है, कब उसको निराई गुड़ाई करना है। एक जो है सर्विस में, एक जो व्यापारी है, वो व्यापारी को अपने व्यापार का ज्ञान होगा। वो ज्ञान कहाँ से मिला? पहले तो कोई ऐसी चीज तो थी नहीं, परंपरा से ज्ञान मिला, प्रथाओं से, परंपरा से ही उसको ज्ञान मिल रहा है। तो वो परंपराएं थी कहाँ? क्योंकि यदि ये माना भी जाए कि यह जो सृष्टि का तो संचालन होता रहता है, हर भी, कोई भी संप्रदाय हो या कोई भी धर्म हो, ये मानता है कि कोई अतीन्द्रिय शक्ति है। जैसे हम कहते हैं एका सत्र सत्य विप्रह बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन हम भिन्न भिन्न रूपों में उसको देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की जो कल्पना है, लेकिन वो ब्रह्म भी जो है, उसको ज्ञान जब तक नहीं होगा तो ब्रह्म भी अपना काम नहीं कर सकता है। और ब्रह्म के इसी जो प्रकृति का जो नियम है, जैसे सूर्य का नियम है कि सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है। प्रकृति के जीव जंतु सारा काम करते हैं। उसी जीव जंतुओं की एक श्रेणी इन प्राणियों की है, जिसको मानव आप कहें। हम भी वही काम करते हैं। इपिडेमिक या कोई चीजें ऐसी होती हैं जिससे पूरा प्राणी जगत जो है, पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, ये डिस्टर्ब होता है और प्रभावित भी होता है। अब इस पूरे सिस्टम को प्रभावित होता है क्या? इस महामारियों के विषय में सिस्टम को मालूम रहता है, प्रकृति को मालूम? हाँ, तो सत्य है, प्रकृति को मालूम, क्योंकि प्रकृति में ही है, इस जगह ही है। लेकिन अब प्रश्न है हमारा ज्ञान नहीं है। कुछ हमारे लोग हैं जिनके पास जो है ज्यादा ज्ञान है, वो उसको समझ सकते हैं। जैसे अभी हो रहा है कि भाई प्लेग हुआ जब पहले, तो प्लेग का वैक्सीन तैयार हो गया। चेचक हुआ, चेचक का वैक्सीन तैयार हो गया। इसका भी तैयार हो रहा है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। वो भी प्रकृति पद्धति है, प्रकृति में है, कोई समझ लेता है। रेडियम यूरेनियम जब था, रेडियम यूरेनियम के बारे में किसी को मालूम नहीं था, एक कार्बन का टुकड़ा था। लेकिन मैडम क्यूरी ने समझा कि इसमें महान शक्ति है। यदि रेडियम को मतलब हम जो है इस प्रकार से विस्फोट कर दें तो इसमें महान से इतनी ऊर्जा इससे उत्पन्न होगी जो सूर्य के ऊर्जा के बराबर है। हीलियम का संचयन कर दें तो यह जो है संचयन करने की शक्ति का ज्ञान किसी के पास आया, उसने प्रयोग किया। अब प्रश्न है कि वो ज्ञान जब था तो उसी को क्यों आया, दूसरे को क्यों नहीं आया? तो ये दूसरा भी सीख सकता था। भाई मैडम क्यूरी के पहले भी लोग थे ना,
एक्सरे मशीन आई तो उसके पहले भी लोग खोजते थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपने आप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय शक्ति है वो कराना चाहती है तो अपने आप हो जाता है। फैराडे जब अपना खोज कर रहे थे तो एकदम परेशान हो गए, उन्होंने फेंक दिया। अपना जब फेंका तो बिजली का प्रवाह हो गया, तो उनको मालूम हो गया नई चीज आ गई। आर्किमिडीज को उनको ये मालूम नहीं था पानी ऊपर आया जब हमारे जो वजन के बराबर तो क्या होता है। सोचते सोचते उनको लगा कि एक नया सिद्धांत हो गया। तो इस प्रकार से प्रकृति में तो सारी चीजें हैं और उस प्रकृति में जो चीजें हैं उसको किस प्रकार से खोज लिया जाए। मतलब ये नहीं है किसी ने उसका आविष्कार नहीं किया, ये नहीं, ये मानने का प्रश्न ही नहीं है। सब प्रकृति में है और उसकी जानकारी लेके उसको कंपाइल कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य जो होता है, हम वेद से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा लिखित साहित्य नहीं था और कंपाइलेशन था, श्रुति परंपरा थी। ये जो थोड़ा भ्रांति है कि वेद लिखित साहित्य था, लिखित साहित्य नहीं था। परंपरा से, जो परंपरा की हम बात करते हैं, जो परंपरा से वो चीज हमको मिलती गई, श्रुति से, श्रुति परंपरा थी। मैंने कहा ना श्रुति परंपरा, तो श्रुति कहा था कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आज भी ये चीजें चलती रहती हैं। आप कहीं भी जाएं, यदि विश्वविद्यालय, आज के विश्वविद्यालय भी हैं, तो गुरु ने सिखाया, शिष्य ने सीखा, प्रोफेसर हो गया, तीसरे को सिखाया, यही परंपरा, इसी को परंपरा कहते हैं। अब प्रश्न है कि जो परंपराएं हैं, और दो प्रकार की परंपराएं होती हैं। एक लोक परंपरा है जो लोक के काम के लिए आती है, और एक केवल चिंतन की परंपरा है। अब लोक की परंपरा जो होती है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें आदमी, व्यक्ति से के किस प्रकार से प्राणियों का निर्वहन कैसे हो, प्राणी जगत के विषय में सारी चीजें लोक परंपरा में आ जाती है। हम प्राणी की बात कर रहे हैं, हम खाली मानव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी प्राणियों की बात कर रहे हैं। तो सभी प्राणियों में ज्ञान होता है। ज्ञान न होता तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो है एक भैंसे से भी वेद मंत्र का उच्चारण करवा दिया था, केवल क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज को, ये तो ऐतिहासिक चीज है, ये भी नहीं है कोई मिथ नहीं है, ये 12वीं शताब्दी की बात है और ऐतिहासिक है कि उन्होंने भैंसे के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करवा दिया। उनमें शक्ति थी कि भैंसे को भी हो, भैंस के बच्चे को भी हो, उतनी प्रेरणा दे सकते थे। शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि त्रोटकाचार्य जो है 20 वर्ष तक बोले ही नहीं थे। जब शंकराचार्य आए तो उनको सब लोगों ने त्याग दिया था, ये तो जो है जड़ है, जड़ मतलब बोलता ही नहीं है, पागल है। शंकराचार्य के सामने पड़े तो उनको जो है, जैसे आज आर्टिस्टिक बच्चे हैं, आर्टिस्टिक बच्चों को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यदि उनको प्रॉपर व्यवस्था किया जाए तो वो भी जो है मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीजें हैं, सब चीजें ये नियत हैं, और इन चीजों को कैसे हम इस चीजों को प्राप्त कर सकें, इसको जिसके विषय में समझ सकें, हम अपना माइंड कैसे डेवलप कर सके। तो कुछ माइंड बहुत विकसित होते हैं, कुछ बहुत विकसित नहीं होते हैं। तो परंपराएं जो हैं, जो लोक परंपरा है, जो कि मैंने कहा परंपरा, प्रथा और रीति रिवाज, तो परंपरा ही प्रथा ही परंपरा है, रीति रिवाज ही प्रथा है। तो रीति रिवाज जब चलते चलते जो है, जैसे आज भी किया जाता है कि जो रीतियां थी उस रीतियों को प्रथा बना दिया गया, प्रथा बना तो उसी को कोडिफाई कर दिया, आज भी किया जाता है। जैसे शरीयत कानून 1937 में आया, उसके पहले प्रथाएं थी। शरीयत कानून है जिसमें कि हदीस से चलता है, वो दो प्रकार की चीजें होती है। जैसे आप कानून में जानते हैं, एक फंडामेंटल चीज होती है, एक प्रोसीजरल चीज होती है। प्रोसीजरल, तो प्रोसीजर जो हम अभी हदीस में प्रोसीजर है, वो शरीयत है। क्या है, समाज कैसे रहे, शादी ब्याह कैसे हो, समाज का दायित्व कैसे रहे, समाज की अन्य चीजें जो हैं, जैसे मतलब जो है अन्य चीजों के बारे में हदीस बताता है, जो सामाजिक चीज है। इसी को हम एक भाषा में कह सकते हैं, यही है यम, जिसको हम यम कहते हैं। और नियम जो है, जो कि यम नियम आप लोग सुने होंगे, नियम क्या होता है, नियम व्यक्तिगत होता है। अब वो व्यक्तिगत नियम जो है वो आज इस महामारी से जुड़ा हुआ है और यम भी जुड़ा हुआ है। तो 1937 में जब शरीयत एक्ट आ गया तो उसी प्रथाओं को कोडिफाई कर दिया गया। आप कहने थी कि प्रथाएं जो थी वो तो उस समाज की परंपराएं थी। जैसे मुसलमान आए तो कन्वर्जन हुआ उनका, लेकिन वो यहाँ की परंपराओं को मानते थे और विधि में भी उन परंपराओं को मान्यता प्रदान किया गया था। 37 में जो उसको कोडिफाई किया गया तो बोला कि नहीं, ये प्रथाएं जो हैं ये है भारतीय प्रथाएं हैं और इनकी प्रथाओं से लेना देना नहीं है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि मुस्लिम विवाह 37 के पहले मान्य नहीं होता था, जब तक कि जो परंपरा, जो प्रथा का, जैसे अभी आप सप्तपदी करते हैं,
तभी विवाह मान्य होता है। तो उनकी परंपरा वही थी जो उनके पूर्वज किया करते थे। यदि उस परंपरा के हिसाब से शादी नहीं हुई, उस रीति रिवाज को मान्यता नहीं मिला, तो वो जो है विधि के दृष्टिकोण से वो अवैध हो जाता था। तो इसी प्रकार से मैंने बताया कि इसी प्रकार से जो है अन्य भी समाजों में यही चीजें होती हैं। यही समाज जो सनातन समाज है उसमें भी यही चीज होती है। तो प्रथम में मुख्य होता है परंपरा और रीति रिवाज। परंपराएं रीति रिवाज क्या होती हैं? जो लोक में चलती हैं। भाषा भी जो है लोक से चलती है, और उसके लिए सबसे बड़ा संरक्षण का काम भारतीय समाज में या पूरे विश्व समाज में महिलाएं किया करती थी। परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण संवर्धन की जवाबदारी महिलाओं पर थी, और कोई लिखित नहीं था या उनको कोई जवाबदारी नहीं दी गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था कि आपको ये जवाबदारी। यह जवाबदारी जो है उनको परंपरा से चलती ही रहती थी। ये उसकी जो है एक सासू है, सास से पतोहू को मिल गया, पतोहू से दूसरी पतोहू को मिल गया, ऐसे मिलता रहता था। ये नहीं है कि वैदिक जो लोग कहते हैं ऋषि परंपरा थी तो ऋषियों ने दूसरे को दिया, वो अपनी चीज दिया करते थे। जो प्रोसीजर फंडामेंटल पार्ट, जैसे कहते हैं कि दो चीजें हैं, एक ज्ञान, वेद के दो पार्ट हैं, एक ज्ञान भाग है और दूसरा कर्म भाग है। ज्ञान भाग की मीमांसा जो पूर्व मीमांसा और जो उत्तर मीमांसा है। अब मीमांसा का मतलब होता है कि हम जो है उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने वाले ज्ञान को, जो जिसको कि हम आज उपनिषद या वेदांत कहते हैं, वो ज्ञान का भाग हो गया। लेकिन जो प्रोसीजरल पार्ट है, जो लिखित साहित्य वेद का जो प्रोसीजरल पार्ट है, वो केवल सामाजिक नियमों को बताता है। कैसे रहा जाए, कैसे मतलब जीवन जिया जाए, कैसे परंपराओं का निर्वाह किया जाए, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि परंपरा में आती हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो रीति रिवाज में आता है। और ये मत समझिए कि कहीं अतीन्द्रिय किसी ईश्वर ने दे दिया, ये गलत है। यही चीजें थी। जैसे अभी एक उदाहरण मैं देता हूं कि लोक भाषा जो है, जब साहित्य लोक भाषा में लिखा जाता है तो वो जो है फिर साहित्यिक भाषा बन जाती है। प्राकृत और पाली दो भाषाएं हैं, तो प्राकृत भाषा और पाली भाषा। जब प्राकृत तो आम जन की भाषा थी, जब उसमें साहित्य का लेखन शुरू हो गया तब वो पाली भाषा हो गई। अब उसमें जितने त्रिपिटक वगैरह हैं, अब वो जो है अब केवल इतने था कि उसमें थोड़ा शुद्धिकरण कर दिया, एक मानक बना दिया। मतलब जो लोक भाषा का एक मानक बना दिया तो क्या हो गया? साहित्यिक भाषा हो गई। इसी प्रकार से जो परंपराओं, प्रथाओं और रीति रिवाजों का यदि मानक बना दिया गया, जैसे अभी हम बताते हैं कि भाषा की बात है, अभी महाराष्ट्र में हम हैं, मराठी बोली जाती है, पुणे की मराठी दूसरी है, पुणे की, विदर्भ की मराठी दूसरी है, औरंगाबाद की मराठी दूसरी है, बंबई की दूसरी है। अब इसकी एक मानक मराठी भी होनी चाहिए जो कि राजकाज में काम हो, जो साहित्य में काम हो। तो मैं पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा था कि इसको ये मत माना जाए कि ये जो है अवैज्ञानिक चीज है। ये वैदिक जो साहित्य है या वेद से जुड़े हुए वेदांत के जो साहित्य हैं, जो उपनिषद के साहित्य हैं, जो खंड दर्शन के साहित्य हैं, ये सब वेद के भाग हैं। वेद मतलब मैंने बताया कि ये सब प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति में कोई चीज प्रकृति की किसी चीज, जैसे मान लीजिए हमको आज जरूरत पड़ गई कि ये महामारी है, इस महामारी का रोकथाम कैसे किया जाए, या इसमें प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या लिया जाए इस महामारी में। इस प्रिवेंटिव मेजर ने, प्रोटेक्टिव मेजर ने, तो ये हमने तय किया। हम किसी के दिमाग में आया तो सोचा गया भाई इसका तो आदि, इसका सोर्स कहाँ है बीमारी का, इसको तो पता तो लगाया जाए। तो इसी प्रकार से उसका बीमारी के सोर्स का पता लग गया कि बीमारी कहाँ से आती है। फिर इसका शमन कैसे किया जाए ये भी पता लग गया। अब कुछ लोग आए उसका साहित्य में उसको जो है एक लिपिबद्ध कर दिए। यूरोपियन लोग जो है लिपिबद्ध करने में बड़े बड़े पारंगत थे, वो लिपिबद्ध कर दिया करते थे। लेकिन लिपिबद्ध में कमजोरी भी है, बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है। और लिपिबद्ध कर दिया। अब बोले कि भाई इस महामारी से कैसे कैसे निदान पाया जाए। तो मेरा कहना है कि मैं बताने के पहले मैं एक आपको ये बता देना चाहता हूं पृष्ठभूमि कि जिस भारतीय परंपरा या सनातन परंपरा, रीति रिवाज और प्रथाओं की मैं बात पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है, वो मानव प्रदत्त ही है। और वो लिखित साहित्य, लिखित रूप में, आज लिखित रूप में है, पहले श्रुति परंपरा में था और किसी न किसी रूप में हर जगह था। यह केवल यही नहीं, ये पूरे मतलब जो है पूरे विश्व में ऐसा था, पूरे संसार में ऐसा था, हर जगह यही थी। इसके बाद जब संप्रदाय का विकास हुआ, किताबी चीजों का विकास हुआ, ये 3-4 धर्म है जो किताबी धर्म है। जैसे इस्लाम है, किताबी है, किताब में लिखा हुआ है, एक निश्चित किताब है, एक मानदंड बना दिया गया, एक मानक किताब रख दिया गया। ईसाई धर्म है, वो भी मानक है, लेकिन ये माना जाए को ईसा मसीह की का उपदेश लिखा हुआ नहीं, उपदेश को कंपाइल किया गया।
अब उसमें उनका बाइबिल हो गया, वो बता दिया बाइबिल के बाहर कुछ नहीं है, कुरान के बाहर कुछ नहीं है, तो उन्होंने एक मानक बना दिया, इस मानक के बियॉन्ड नहीं कुछ है। लेकिन जो वैदिक परंपरा है उसमें बियॉन्ड कोई प्रश्न ही नहीं है, वो बढ़ता रहता है, वो घटता रहता है, वो मतलब जो उसमें जुड़ते रहते हैं उसमें कम भी होते रहते हैं, वो ये परंपरा, क्योंकि समयानुकूल जिस समय में जिस प्रकार की जरूरत पड़ती है उस प्रकार से उसको जो है जोड़ दिया जाता है। अब मैंने कहा कि साहित्य या जो ज्ञान खंड है, ज्ञान खंड तो ठीक है, जैसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, कुछ नई चीज खोजते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान भाग जो है वो प्रयोग भाग, वो जो है प्रयोगशाला का काम है। लैंड, लैब टू लैंड, और लैंड का जो भाग है वो परंपरा है, वो आज पहले से थी। ये देखिए दोनों धाराएं चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि धाराएं दोनों नहीं है, लेकिन उसको एक मतलब संस्कृताइज कर देते हैं, उसको एक मानक रूप दे देते हैं उस परंपरा और धारा को, और उसके बाद कोडिफाई भी हो जाता है। तो इस कारण से जो अभी मैं बताऊंगा कि जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे, अब वेद क्या है, वेद को समझने के लिए, क्योंकि सरल भाषा में कठिन भाषा थी, भाषा कठिन नहीं थी, बहुत सरल भाषा थी, मतलब एकदम वेद की यदि आप संस्कृत देखें, वेद का भाष्य आप करें तो आप जो है अपनी जो लोक जो बोली बोलते हैं बोली के हिसाब से है। अब उसको एक मानक रूप बाद में चल के दे दिया गया, बोली है, बोली का संग्रहण है और कुछ नहीं है, बड़ी सरल संस्कृत है उसकी। बाद के जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए उनकी संस्कृत बहुत ही कठिन है, इतनी कठिन है कि समझना जो है, समझने के लिए व्याकरण सीखना पड़ेगा। वैदिक संस्कृत में इतनी कठिन नहीं है, आसानी से, क्योंकि वो ध्वनि यंत्रों, ध्वनि पर चलती है, हाथ के मतलब जो है अप और डाउन पर चलता है, इसलिए बड़ा सरल है। तो प्रश्न क्या हुआ कि जो परंपराएं रीति रिवाज थी, उस परंपराओं रीति रिवाजों को थोड़ा सा वैज्ञानिकता या आप कह लें थोड़ा सा ज्ञान का पुट दे करके उसको जो है वैदिक साहित्य का श्रुति परंपरा कर दिया। और 18वीं 19वीं शताब्दी में उसको पर लेखन परंपरा नहीं थी। लेखन परंपरा क्या था? अवैदिक साहित्य का लेखन था, जिससे कि वैदिक साहित्य को समझा जा सके। जैसे 6 दर्शन थे, तो 6 दर्शन की लिखित परंपरा थी। महाभारत पुराण थे 18, उसकी लिखित परंपरा थी। जितने स्मृतियां हैं 18-20 स्मृतियां हैं, उसकी भी लिखित परंपरा है। उपनिषद की लिखित परंपरा नहीं थी, लेकिन बाद में लिखित परंपरा हो गई। 108 उपनिषद हैं, लेकिन करीब 18-20 हमको मिलते हैं। वेद में जहां तक जो भाग था, जो ऋचाएं थी, वेद में कई संहिताएं थी। वेद में भी संहिता मतलब जो कोड है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड आप कहते हो, इंडियन पेनल कोड है, ये इस प्रकार की रेवेन्यू कोड है, ये संहिता है। संहिता क्या होता है? उसको जो है समझाने का, कैसे समझा जाए सरल भाषा में। आप इसमें वकील होंगे तो सीपीसी के बारे में बताता हूं। आर्डर होता है और रूल होता है। रूल तो ठीक है, मोटा मोटा है, फंडामेंटल। आर्डर जो है उसका प्रोसीजर है। तो इस प्रकार से बृहद साहित्य को वेदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतने साहित्य हैं। अब प्रश्न होता है, जैसे अभी दर्शन की, खट दर्शन की बात हम करते हैं, उसमें योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, उसके मतलब जो है ये मीमांसा हो गया। तो ये सारे दर्शन जो है, इन दर्शनों को और उपनिषद हैं वो ज्ञान के भाग में आते हैं। कर्म के भाग में ये परंपराएं हैं, ये रीति रिवाज हैं और ये हमारी प्रथाएं हैं। अब ज्ञान का भाग जो था 2 प्रकार का होता है। एक तो भाई ठीक है, चिंतन करिए ईश्वर के विषय में, अपरा परा विद्या के विषय में जानिए। और दूसरा जो परंपराएं रीति रिवाज हैं उनको भी थोड़ा पुट दीजिए, जैसे लैब टू लैंड हमने कहा। लेकिन वो लैब वाला काम जो है बंद हो गया, इसलिए लैंड वाला जो काम था, परंपराएं रीति रिवाज, उसको लोग अव्यवहारिक मानने लगे। लेकिन अव्यवहारिक नहीं है। अब ये जो महामारियां जब आती हैं, आज की महामारियां नहीं, 1897 में जब प्लेग फैला तब भी इस पर चर्चा हुआ था। 1919 में जब स्पेन का बुखार आया तो महात्मा गांधी ने अपने पत्रों में इसको लिखा हुआ है कि भाई आज की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है। 97 में अंग्रेजों ने कानून बना दिया, लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा था, भाई कानून से नहीं होगा, हमारी परंपराओं से, हमारी रीति रिवाज से हम प्लेग को ठीक करेंगे। और ये प्लेग आया कहाँ से, इस पर भी शोध होना शुरू हुआ। ये हुआ भाई यूरोप से आया। ये स्पेन का बुखार भी यूरोप से आया। क्यों यूरोप से आया? क्योंकि वहां इन परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनको किताबी, वहां का जो सिस्टम है वो किताब पर आधारित है, किताब के बियॉन्ड कुछ नहीं है। आज भी आप यूरोप में देखिए तो उनके रीति रिवाज पुराने, अभी अमेरिका में जाइए तो अमेरिका के पुराने जो रेड इंडियन उनका रीति रिवाज है,
न्यूजीलैंड में जाइए तो उनके यहाँ रीति रिवाज है, लेकिन यूरोप में इसलिए नहीं है कि किताब की बयान कुछ भी नहीं। अब किताब में तो रीति रिवाज इतनी तो लिखी नहीं गई, परंपराएं लिखी नहीं गई, तो ये इसके बयान नहीं। ऐसे भी मैंने बता दिया पहले, जो किताबी मतलब संप्रदाय है उनमें ये इस चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो गैर किताबी हैं, इसको कहले जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो इस पर उनको उस पर ही जोड़ दिया जाता है। और यही जो परंपराएं रीति रिवाज मान्यताएं हैं, वह जो है उस पर समय समय पर अनुसंधान भी होता है। गांधी जी 1919 में जब वर्धा में आया तो उन्होंने सारा जो कुछ परंपराएं पुरानी थी, मैं आप उनके गांधी कलेक्शन जो लेटर का है वो सबको लिखते रहते थे, अंग्रेजों को भी लिखते थे भाई इसमें कुछ मत करो, इसमें ये जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हम उसको मानो, हम उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन ठीक है, उस समय धीरे धीरे वो ठीक हो गया। तो 97 में भी यही था, इसके पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता है कि मतलब हुआ, बहुत बार हुआ, लेकिन जो लिखित है वो हम 97 जिसमें कि कानून बना हुआ, प्लेग कानून बना, बहुत बड़ा कानून था। ये जो हिटलरशाही, ये तो ड्रैकोनियन कानून था, उस पर बड़ा विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि इतिहास का तब से लेकर के 1909 तक, 1897 से लेकर 1909 तक एक इतिहास का विषय ही बन गया है, एक क्रांतिकारियों का विषय ही बन गया, इतना अत्याचार हुआ। अब आते हैं हम कि हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं इसमें कितनी कारगर है, उपयुक्त क्या है इस महामारी के लिए। अब हम पहला उदाहरण आपको देते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने ही कहा नमस्कार। अब नमस्कार मतलब जो हमारे यहाँ परंपरा नमन करते हैं हम किसको, ये आत्मा है, मतलब ये जो है शरीर के अंदर जो देही है, देही मतलब जो आत्मा जिसको कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती है, उस आत्मा को हम नमन करते हैं। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम करने की प्रथा है, पहले मैं व्यक्ति से ही आता हूँ। अब यह रहा कि साष्टांग अभी भी गुरु के पास जाते हैं तो साष्टांग करते हैं, माता पिता का साष्टांग करते हैं। ये भी नहीं, छूना नहीं, उसमें इस जो है जिसको हम कहते हैं कि ये पैर का प्रक्षालन करते हैं, ये भी परंपरा है। यह परंपरा जो है हमारी प्रथा भी बन गई, यह परंपरा प्रथा बन गई। बहुत सी चीजों ऐसी, यदि आप ये नए कानून अंग्रेजों के आने के पहले के या अंग्रेजों के समय के कानून को देखें अब, क्योंकि अंग्रेज हर जगह, खाली आईपीसी में भी प्रथा को मान्यता थी। तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप महाराष्ट्र में है, पुणे में ही पेशवाकालीन जो कानून है वो प्रथाओं परंपराओं पर ही आधारित थे। आज भी 1956 तक, जब हिंदू विवाह अधिनियम आने के पहले या हिंदू मतलब फैमिली लॉ आने के पहले, सारी परंपराओं और प्रथाओं पर ही निर्णय दिया जाता था। दाय भाग, 2 प्रकार की प्रथाएं थी, दाय भाग सिस्टम था और मिताक्षरा सिस्टम था। शादी हो, ब्याह हो, जो कुछ हो, उत्तराधिकार हो, फिर गोद हो, सब में 2 सिस्टम थे, मिताक्षरा और दाय भाग, और ये स्मृतियों पर आधारित थे और कुछ जो है परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित थे। 56 तक ये था। 56 में जब हिंदू विवाह अधिनियम आ गया तो इसको कोडिफाई कर दिया गया, मिताक्षरा परंपरा प्रथा नहीं रह गई। लेकिन आज भी न्यायालय जो है उन प्रथाओं पर निर्णय देते हैं, क्योंकि कोडिफाइड लॉ कंप्लीट नहीं, जो मैंने कहा किताबी जो चीज है वो कंप्लीट नहीं होती है। आज भी हमारे जो है फैमिली लॉ कंप्लीट नहीं है, तो न्यायालय को प्रेसिडेंट लेना पड़ता है प्रथाओं से, परंपराओं से। आप किसी भी फैमिली कोर्ट में जाएं, क्योंकि ये क्यों कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको आपने बांध दिया। बधी चीज, पानी को आप बांध दें तो सड़ जाता है। आज प्रॉब्लम क्या हो, यदि वो बहता रहता है तो सड़ता नहीं, और नदी तब नदी बन जाता है, और बांध देंगे तो सड़ जाएगा। तो वही प्रकार है कि हम इस सब अपने परंपराओं को, प्रथाओं को बांधेंगे नहीं, हम इसको खुला छोड़ देंगे और इसमें नई चीजें जुड़ती जाएगी, कुछ खराब चीजें वो हटती जाएंगी। यही हमारा प्रवाह था। अब होता है कि मैंने एक उदाहरण बताया कि तो आप रोज आप करते होंगे, बाबा रामदेव के योग वगैरह को सुनते सुनते, योग के में अष्टांग योग है, उसमें पहले यम आता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम। देखिए, और कहीं मत जाइए, हमने 6 दर्शन की बात किया, तो एक योग दर्शन है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध योग दर्शन है, प्रणेता उसके पतंजलि जी थे। तो वशिष्ठ योग भी है, लेकिन मतलब वशिष्ठ, पतंजलि, ये सब ऋषि उसके प्रणेता थे। तो आता है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अब उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। अब हम केवल यम और नियम पर आते हैं। यम क्या है? यम जो है समाज के लिए है। क्या होता है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह, ये यम है। नियम क्या है? शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। तप, तब मतलब ये नहीं विद्या ध्यान, तब मतलब जो कुछ जहां आप हैं वहां जो है, तब माने होता है कठोरता, तब माने होता है संघर्ष, तब माने होता है मतलब जो काम करने की प्रवृत्ति, ये तप होता है।
शौच माने पवित्रता, अंदर से बाहर से पवित्र ही। अब देखिए पूरा ये तो हो गया, व्याख्या भी आगे बढ़ती है। तो शौच हो गया, तप हो गया, ये व्यक्ति के लिए है। शौच, तप, इंद्रिय निग्रह हो गया, विद्या हो गई, मतलब विद्या। और ईश्वर आराधना, मैंने बताया ईश्वर आराधना मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, ये नहीं है। ईश्वर आराधना या गिरजाघर में जाएं, ये नहीं है। ईश्वर आराधना तो प्रकृति ही है। ईश्वर आराधना का अपने कर्म को करें, वही ईश्वर आराधना है। कर्म से विमुख ना हो, ये इसका कहीं ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर कहीं बंधा हुआ नहीं रहता है, किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं रहता भाई। ईश्वर तो व्यापक सर्वव्यापी है, उसको क्यों बांध देते हैं? जैसे मैंने किताब को बांध दिया, किताब में क्यों बांध दिया ईश्वर को? ईश्वर को किसी जगह घर में क्यों बांध दिया? तो यम नियम, उसके बाद आसन होता है, बैठा कैसे जाए। आसन के बाद फिर श्वास की प्रक्रिया होती है, क्योंकि श्वास ही जो है ये जीव को, जीव जो है ब्रह्म का रूप है, और ब्रह्म इस मंदिर में रहता है, शरीर माध्यम, शरीर जो है कि रूपी मंदिर में रहता है। तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को समझना चाहिए। अब प्राणायाम हो गया, तो फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार तक आइए। धारणा ध्यान समाधि तो बहुत बड़ी बात है, वहां तक मत जाइए। तो यम का हमने बताया कि उसके बाद कुछ 4 और जुड़ते हैं। 4 कौन जुड़ता है? शरीर श्रम, अस्वादु, शरीर श्रम कीजिए, ये हमारे परंपराओं में है। इसको धर्म का रूप है, धर्म का रूप दे दिया गया बाद में। शरीर श्रम अस्वादु, जीव पर नियंत्रण करिए। देखिए आज की महामारी में जीव पर नियंत्रण कीजिए। महामारी, यही महामारी नहीं, बहुत बीमारियां खत्म हो जाएंगी। शरीर श्रम अस्वादु, इस पर ध्यान नहीं किसी ने दिया। और सर्वत्र भय विवर्जन, आप फियरलेस हो जाइए, भय रहित हो जाइए, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। सर्वत्र भय, इसको और जुड़ेगा 4 3 7। सर्वधर्म समानत्व, और सभी धर्मों में, सभी व्यक्तियों में, सभी जीवों में एक रूप भगवान का देखिए, सब जीव बराबर हैं। तो समस्या ही नहीं होगी। जो आज उदंडता होती है, जो आज लड़ाई झगड़े होते हैं, ये नहीं होंगे, कोई चीज नहीं होगी। समान स्वदेशी स्पर्श भावना, और सबको प्रेम रखिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है। और ये किसमें आता है? नियम में। व्यक्ति का एक कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का। ये हमारी परंपराएं कहती हैं, हमारा रीति रिवाज कहता है। हमने बताया परंपरा जो ये बना, ये परंपरा से ही बना, हमारी नहीं, विश्व की परंपरा ही यही है, सब धर्म भी यही कहते हैं। तो स्पर्शी भावना, स्वदेशी, अब प्रश्न नहीं आता है। देखिए महामारी स्वदेशी से कितना जुड़ी हुआ, ऐसी स्वदेशी नहीं भाई। स्वदेशी मतलब अपने, पहले तो भोजन अपने घर का खाइए। मतलब स्वदेशी का मतलब होता अपने इर्द गिर्द जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग किया जाए। स्वदेशी का मतलब नहीं कि बाबा रामदेव का साबुन लगाइए स्वदेशी हो गए, और उसका क्या नाम है बिरला की कंपनी का लगाइए तो परदेशी हो गए, ये नहीं। अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया जाए। जैसे अब दैनिक जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कपड़े से ही हो गया। तो इतना आप कोशिश कीजिए, कठिन नहीं है। कपास अपने, ठीक है शहरों में ये व्यवस्था अलग से बनानी पड़ेगी, कपास मिल भी जाता है, उससे आप कपड़ा भी तैयार कर सकते हैं, समस्या नहीं है। चाय की शुरुआत करते हैं तो आप 2 गमलों में, 3-4 गमले में जो है वो घास लगा दीजिए, जो चाय वाली घास है, चाय भी पीते रहिए आप। गमले हैं। साबुन के जगह पर आप जो है, आप जानते हैं मिट्टी का उपयोग होता ही है, दही का उपयोग होता है, दूध का उपयोग होता, लगाइए शरीर में। सबसे चने का बेसन लगाए, अपने यहाँ जो उपलब्ध है उसको दूर। स्वदेशी का मतलब होता है स्वदेशी, अपने पास, हमारे घर के पास जो उपलब्ध है हम करें, हमारे गांव के पास में उपलब्ध है उसका उपयोग करें, हमारे शहर के पास उपलब्ध है, जो उपलब्ध है उसके नजदीक हम उतने जानकारी रखें, उसका उपयोग करें। तो स्वदेशी ये, यदि हम ऐसा उपयोग करेंगे आप शुरुआत से, तो पहली बात तो होगी जीभ पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे, घर का पैसे भी बर्बाद नहीं होगा। साबुन क्या करते हैं? साबुन से केवल यही साफे होता है स्किन ना। यदि आप चने के बेसन से इतना 1 चम्मच लेके साफ कर लें, वो भी स्किन साफ हो गया। अच्छा साबुन बना कैसे है, ये भी समस्या है। अब प्रश्न होता है बाद में, बाद की हम चर्चा करेंगे। तो ये होता है, ये है हमारी परंपराएं। यदि आप इस परंपराओं का उपयोग करें, इस स्वदेशी का उपयोग करें, तो होटल में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में ही खाना बन जाएगा। सुबह है ब्रेड खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सड़ा जो है रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी बन जाएगी, बन जाएगा। अब तो सबके घर में बिजली है, वो घंटी, एक जो आटा पीसने की मशीन सब लोग रख लें, ताजा आटा मिल जाएगा। यही है हमारी परंपराएं, यही है स्वदेशी की परंपरा, यही है। स्वदेशी का मतलब यही है। हम दवा के लिए क्यों बाहर जाएं? हम 4-6 गमले में तुलसी लगा लें, हम घृत कुमार लगा लें, हम ग्वार सब लगा लें,
सब कुछ दवा वही, और ऊषा लगा लें, सब कुछ वही है, कोई जरूरत ज्यादा नहीं। आज भी देखिए भारत सरकार भी कह रही है कि आप अमृता का काढ़ा पीजिए, अमृता जो है गमले में लगाइए तो अमृता खूब होती है, काढ़ा पीजिए तो ये इससे आपको राहत मिलेगी, प्रोटेक्टिव है, आप जो है प्रिवेंटिव है ये अमृता का। अमृता मतलब गिलोय कहते हैं। तो यह स्वदेशी हो गया। अब गिलोय का काढ़ा पीजिए, देसी चाय पीजिए, तो इससे जो है आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप वो तेल लीजिए, नाक से तेल डालिए गले में, तो ये जो है कोरोना जैसी बीमारी से आपको राहत मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। तो ये हो गया आपका स्वदेशी। तो मैंने बताया कि यम जो है 4 तो शास्त्र सम्मत यम है, और उसके अलावा 5 जो है व्यवहारिक है, जिनको रीति रिवाज कहते हैं। ये व्यवहारिक यम है, ये नियम है जो व्यक्ति के लिए है, और यम है समाज के लिए। यम सत्य अहिंसा, समाज जो है अहिंसक बने, समाज जो है सत्य के मार्ग पर चले, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, समाज में ब्रह्मचर्य की भावना हो, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म को समझे, इसका मतलब नहीं है ब्रह्मचर्य की भावना यही नहीं है कि भाई अब वो तो हम बताएं आपको उच्च श्रृंखल ना हो, स्वतंत्र हो, स्वच्छंद ना हो, स्वच्छंदता पर कंट्रोल है ब्रह्मचर्य में, स्वतंत्रता पर नहीं। तो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, आस्ते, अब आस्ते है चोरी, चोरी का मतलब हो गया कि भाई हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करेंगे, चोरी होगा। अपरिग्रह तो है ही कि भाई जितनी आवश्यकता उतना का उपयोग करें, इतना का उपयोग करते तो घर में जो है गंदगी नहीं होती, गंदगी नहीं होती चूहे नहीं आते, चूहे नहीं आते तो वो तिलचट्टे नहीं आते, तो ये बीमारी नहीं बढ़ती। और घर में पूरी अलमारियों की अलमारी भरी हुई है, अपरिग्रही बनिए, यही हमारी परंपरा कहती है अपरिग्रही बनने की। अब ये तो हो गया कि यम और नियम हम रोज बात करते हैं, यम नियम की बात, क्योंकि योग की बात करते हैं, योग तप योग कुछ नहीं है, योग ये तो वो है, मतलब जो है मल्ल विद्या है, ये तो नट विद्या है, ये तो कसरत है, बाबा रामदेव दिखाते हैं, ये कसरत है, इससे शरीर ठीक होती, शरीर श्रम लिखा है, कसरत है, शरीर श्रम करिए भाई। जब तक आप जो है शरीर को, कमर को झुकाइएगा नहीं, तब तक आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है। तो कसरत आपने किया, लेकिन कसरत के अलावा जो 7 चीजें हैं वो तो आप किए नहीं। अब आप बोले कि रामदेव बाबा ने का योग, रामदेव बाबा योग नहीं सिखाते, कसरत करना सिखाते हैं। योग के लिए यम नियम प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्याहार कैसे, मतलब जो एक निश्चित किसी, अब ये नहीं आप वहां अभी यदि उसकी व्याख्या होगी किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्ति, ये नहीं है कि ईश्वर पर ऐसे बैठ करके ध्यान लगाइए, आप निश्चित लक्ष्य को निश्चित करें अपने पहले, क्या लक्ष्य है आपको। आपका आसन होता है बैठने का ढंग, 84 आसन हमारे परंपराओं में है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये योग दर्शन जो आया, यह परंपरा को कंपाइल किया गया, रीति परंपराएं जो हमारी थी, जो नियम कानून थे, रीति रिवाज, राइचुअल को रीति रिवाज नियम का, उसको कंपाइल किया। किन्होंने किया? पतंजलि जी को पतंजलि ने किया, वशिष्ठ जी ने किया। तो ये परंपराओं रीति रिवाजों को कंपाइल किया गया, और इसी में ये चीजें हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम, आसन। आसन माने 84 प्रकार से आप बैठ सकते हो, 84 प्रकार से आप अपनी अभी तक है। इसके अलावा वो भी आप देखिए, कभी होता है कि जीव जंतुओं पर है, कुकुरासन है, मयूरासन है, सर्पासन है, देखिए कहीं बाहर नहीं है। ये मत समझिए किसी ने कुछ किया, सर्प जैसे काम करता है तो सर्प जैसे बैठता है, जो सुखी है, ये उसको कोई बीमारी नहीं, तो हम सर्प जैसे क्यों बैठने की कोशिश क्यों ना करें, अपने शरीर को सर्प जैसा बनाएं। और लोग बोलते हैं भुजंग आसन करिए, सर्प मतलब भुजंग आसन से ये बीमारी नहीं होगी, भुजंग आसन कीजिए, मयूर आसन कीजिए, तो मयूर कुकुर आसन कीजिए तो पेट जो है साफ हो जाता है, लैट्रिन हो जाता है। ये कुकुर को किसने सिखाया? कौन सी पोथी उसने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। तो हमारी जो परंपराएं, हमारी रीति रिवाज नियम है, वो कुत्ते को देख करके, भाई कुत्ता ऐसे करता है, उसको कंपाइल कर दिया, यही चीज आसन में लिखा है। अब उसको उन आसनों के प्रवर्तक सिद्ध हो गए, जो इसको करने लगे उनका नाम सिद्ध हो गया, योगी हो गए, और बेचारा कुत्ता योगी हुआ ही नहीं। प्रश्न ये है, योगी ने कुत्ते को देखा और लिख दिया कुकुरासन, तो वो योगी हो गए, वो सिद्ध हो गए। 9 मतलब जो सिद्ध आप जानते हैं 84 सिद्ध हैं, 9 नाथ हैं, योगी जो हैं, अब योगी हो गए। कहाँ भुजंग, सांप चलता है उसी प्रकार का हम, मयूर, मोर कैसे बैठता है, मोर बैठने का बड़ा ही अच्छा ढंग है। तो हमने पहले बताया कि हमारी जो प्रकृति में जो कुछ है, पेड़ से जीव जंतुओं ने, जैसे जीव जंतु रहते हैं, जैसे करते हैं, क्या खाते हैं, जैसे अभी आप देखें इन लोगों ने सांप की औषधि कहां से, सांप काटने का औषधि कहां से खोजा? सांप और नौले में शत्रुता होती है, नौला लड़ता है,
सांप उसको काटता है, फिर न्योला जाता है जंगल में या कहीं जाता है, एक कोई घास ले आता है, खा लेता है, सांप के विष का असर नहीं पड़ता। किसी ने देखा कि भाई उस घास को खोज लिया जाए, गुरु तो न्योला है, गया उस घास को खोज लिया, किसी ने पेटेंट करा लिया, अब उस घास से सांप की औषधि बनने लगी। और खोजा किसने? न्योला ने। अभी आप देखिए कुत्ते अपच होता है तो वो घास खाते हैं और वोमिटिंग कर देते हैं। अब देखिए, अब आप जो धौत क्रिया होती है यही है धौत क्रिया। धोती अंदर डालते हैं कपड़ा, वोमिटिंग करा देते हैं, नीचे की सारी गंदगी साफ हो जाती है। सीखा कहां से? कुत्ते से सीखा। कहना यह है कि ये परंपराएं केवल मानव नहीं है, ये परंपराएं, ये नियम कानून जो हैं वो समझते नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं है, मूर्ख है। ये प्रकृति में चाहे वो जड़ हो, चाहे वो जो है जीव हो, चाहे वो प्राणी जगत हो, जंतु जगत हो, सब में जो चीजें हैं उनके यहाँ भी परंपरा बड़ी अच्छी है। मैं जंगल विभाग का अधिकारी हूं, अभी आप जाएं जंगल में देखिए, अभी बहुत जहां मानव का प्रवेश, मानव कम जाते हैं, देखिए कितना बढ़िया उनका जो ये किताबों में आता है, ये जो टीवी वगैरह में जंगल बुक वगैरह ऐसे ही है, उनमें भी खूब बढ़िया व्यवस्था चलती है। शांति से बैठ के देखिए, घासें भी बोलती हैं, पत्थर भी बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। अब हमारी शक्ति नहीं उसको समझने का। यह इसलिए मैं पहले शुरुआत करने का इसलिए मांगा कि आप इस परंपरा को ऐसे मत समझें। परंपरा जो है वो है, क्या कहते हैं, इसका कहीं से वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब आता है कि इस महामारी में रीति रिवाज को कैसे फॉलो करें। मिश्रा जी का फोन आया था, तो कैसे फॉलो करें? तो पहले हमने बताया कि साष्टांग, हमारे यहाँ साष्टांग नमस्कार करने की परंपरा थी, वह नमस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ जैन समाज में आज भी आप देखिए कि जैन मुनि जो है मुंह बांधे रहते हैं, क्योंकि कोई कीटाणु न आए, वो तो अहिंसक है, इसलिए वो मुंह बांधे रहते हैं। तो मुंह तो बांधने की परंपरा है। खाने पीने की परंपरा में एक शुरुआत पहले से करता हूँ। धर्म स्तंभ का एक श्लोक है, 4 चीजें हैं, मनुस्मृत, महाभारत, धर्म, पद्म पुराण। इनमें आज की, हेलो, हाँ हाँ, इनमें जो है, इनमें इन चीजों में आज की महामारी के विषय में इन पुराणों और स्मृतियों में, क्योंकि वेद में तो है ही, इन स्मृतियों में पूरा रहन सहन कैसे किया जाए, खाना पीना कैसे खाया जाए, स्वच्छता पवित्रता कैसी रखी जाए, ये इन स्मृतियों पौराणिक ग्रंथों में दिया हुआ है। और इन स्मृतियों पौराणिक ग्रंथों में जो दिया हुआ है, ये पहले जो है हमारी परंपराओं में, हमारे रीति रिवाजों में था। मैंने बताया उसी को कम। महामारी का कारण क्या होता है? 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक होती है जो शारीरिक बीमारी हो जाती है, आपके रहन सहन से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके माइंड सेट से, इन सबसे जो बीमारियां हो जाती हैं। दैविक बीमारी होती है जो ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है, महामारी हो गई, महामारी से आ गया, बीमारी हो गई। दैविक और भौतिक होती है जो पानी से बीमारी हो जाती है, हवा से बीमारी हो जाती है। 3 प्रकार की बीमारियों का कैटेगराइजेशन 3 प्रकार से किया गया है। यही परंपरा में भी और शास्त्रों में भी किया गया है। अब प्रश्न होता है कि भौतिक बीमारी तो सबको मालूम हो, तो आती है और चली जाती है, आज के मतलब वो चली जाती है। दैहिक और दैविक 2 बीमारियां हैं। दैहिक बीमारी होती है जो माइंड सेट है, लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, आहार शैली, इस सबसे, और भोजन, आहार शैली, भोजन शैली हुआ, इससे होता है। अब आ गया दैविक बीमारी जो होती है, देव प्रदत्त बीमारी होती है। बहुत सी बीमारियां होती है, महामारी होती है, महामारी उसमें एक है। बाढ़ आ गया, बाढ़ से भी मतलब जो बीमारी फैल गई, वाटर डिजीज है, लेकिन वो भी लोग बोलते। भूकंप आ गया, उससे लोग मरने के बाद मतलब जो है लोगों का थोड़ा सा ऐसी हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया। तो आते हैं इन बीमारियों को जो महामारियां, जिसको कि पहले बीमारी है फिर और ये न समझिए, इन महामारियों का जिक्र शास्त्रों में पहले से है। ना होता तो मैंने 5 शास्त्रों का उदाहरण बताया, आप लोग उसको इंटरनेट में देख भी सकते हैं, उनमें क्यों इस प्रकार की बातें लिखी गई है। पहले हम आते हैं धर्म स्तंभ सूत्र पर, और उसमें देखिए भोजन 6 प्रकार के होते हैं। तो हर प्रकार के भोजन को कैसे किया जाए, त्रिपाठी जी किया जाए, लेह चाटने की चीज कैसे हो,
चबाने की, चाव्य जो होता है दांत से चबाने की वस्तु कैसे खाया जाए, सबका बहुत ही बृहद वर्णन है। अब प्रश्न होता है कि उसमें है कि लेह और पेय, इन दोनों को कभी हाथ से नहीं छूना चाहिए। हाथ से नहीं, चाटने के लिए हाथ से नहीं, हाथ गंदा होता है, ये कभी नहीं। पेय पदार्थ जो चाव्य पदार्थ है, जो उसको जो है, और चाव्य पदार्थ को किस प्रकार से पकाया जाए, पूरी उसकी प्रोसीजर दिया गया है। कैसे उसको रसोई कैसी हो, रसोई कैसी हो, और ये परंपरा थी पहले, रसोई हो साफ सुथरी हो, रसोई बनाने वाला जो है, बनाने वाली, वाला वाली दोनों का एक काम है जो हो, वो जो है शौच, मैंने बताया कि पहले बताया कि यम और नियम हमने पहले ही बता दिया है, नियम से रहे, शौच बने बाह पवित्रता कर ले, कपड़ों स्नान वगैरह कर ले, पानी मिले तो स्नान कर ले, पानी ना मिले तब भी स्नान की व्यवस्था है। तो रसोई कैसी, और रसोई में अन्न कैसे जाए, जिसको पकाना है उसकी भी विवेचना है। उन रन्नों को आज भी यदि आप परंपरा कभी गांव में चले जाएं तो देखिए कि अन्न को एक एक तिनका, एक एक दाना बिना जाता है, अन्न धुला जाता है, 2-4-6 बार धुला जाता है, बिना जाता है, धुला जाता है। क्या हो गया? त्रिपाठी जी ठीक चल रहा है त्रिपाठी जी? हाँ त्रिपाठी जी आप टाइम अभी बहुत हो गया है, 5 मिनट में समाप्त करें। 5 मिनट में? अच्छा 5 मिनट में खत्म कर थैंक देते यू। हैं। और आप अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज गो अहेड, 5 मिनट में समराइज करें। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा नहीं ठीक चल रहा है अभी, ये प्रतीक्षा है, सुनाई पड़ रहा है त्रिपाठी जी, सुनाई पड़ रहा है, आप सुनाई just- पड़ा है ना? अच्छा हाँ हाँ चलिए प्लीज सुनाई आगे पड़ा। बढ़िए। तो हमारा ये, तो अब आते हैं कि रसोई कैसी हो, रसोई की परंपरा किस प्रकार से, रसोई में अन्न कैसे जाए, जैसे अन्न होगा वैसे मन बनेगा, फिर उस अन्न को किस प्रकार से पकाया जाए, ये भी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था दी गई। और आज भी बहुत से घरों में आज भी उसी प्रकार से अन्न जो है पकाया जाता है, अन्न को जो है भोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह जो है अब धर्म सूत्र में भी पहले है। फिर आता है कि कपड़े कैसे हों, तो मनुस्मृति में आता है, मनुस्मृति में आता है कि जो कपड़े आप हैं, जो कपड़ा एक बार आप पहने, कपड़ा पहन के रसोई में जाइए तो स्नान कर लीजिए, आप दूसरे कपड़े को बदल लीजिए, बिना स्नान करने के बाद सूखा कपड़ा ही आप पहनिए, कहीं बाहर से आइए तो हाथ पैर को धुल लीजिए, धुल के तब घर के अंदर जाइए, श्मशान घाट से आइए, राजा के यहाँ से आइए, राजा मतलब ऑफिस से आइए या अन्य काम करके आइए, तो अपने शरीर को साफ कर लीजिए, पानी से स्नान कर लीजिए, कपड़े को बदल लीजिए, बदल करके उस कपड़े को, उसके बाद ही तब आप अंदर आए, तब आप भोजन करें या भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। ये दो चीजें हो गई। कपड़े हमेशा, कोई भी कपड़ा यदि आप पहने हैं तो उसको जो है भोजन करते हुए उस कपड़े को जो पहन के आइए, उसको पहन करके आप भोजन मत कीजिए, बाहर से आइए दूसरा कपड़ा आप पहनिए, उससे आप भोजन कीजिए, उस कपड़े को पहन करके आप जो भोजन मत बनाइए, अब उसको दूसरा कपड़ा आप बदलिए, स्नान कर लीजिए और कपड़े को धुल डालिए, धुल करके फिर आप जो है भोजन बनाइए और भोजन कीजिए। तो भोजन की परंपरा ये है, हमारी प्रक्रिया ऐसी है। इस प्रकार यदि आप भोजन करेंगे और भोजन बनाएंगे, फिर नीचे भी आता है, फिर आता है महाभारत आता है कि पानी का कैसे उपयोग करें आप जो है कैसे आप जो है पानी का उपयोग करने के लिए बृहद रूप से व्याख्या किया गया। पानीयता पेय है ना वो, तो पानी जनित बीमारियां होंगी ही नहीं आपको यदि आप पानी का उपयोग बताए हुए परंपराओं से करेंगे। पानी बिना उबाले कोई पानी पीना नहीं चाहिए। अब ये मैंने कहा कि भाई जब धर्म शास्त्र में लिखा है, तो आज क्यों करते, कोई करता क्यों नहीं? धर्म शास्त्र तो किसी ने देखा नहीं, पढ़ा ही नहीं, और पर किसी ने पढ़ाने की कोशिश नहीं किया और परंपराओं को समझने की किसी ने कोशिश नहीं किया। अब जब पहले कहा जाता था पानी उबाल के पीजिए, तो आज हम क्यों उबाल के नहीं पीते हैं पानी? हवा के बाद त्रिपाठी जी का लिंक चला गया लगता है। वो लोग रसोई की
I'm calling him. Just a minute, please. There seems to be network problem, so we will proceed. I will request now to Prerna to extend vote of thanks, formal vote of thanks. Prerna, over to Prerna. Colonel Neeruji is giving the vote of thanks. Oh, sorry, I'm really sorry, Neeruji. I'm extremely sorry. Yeah. Thank you, Colonel Mishra. Today's talk was really good. अभी मैं किस तरह से धन्यवाद करूं क्योंकि वो तो नहीं सुन रहे हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ रिकॉर्डिंग है, उनको भेज दूंगा। नीरू जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, भेज दूंगा। ओके त्रिपाठी जी, आपने जो कुछ भी बताया हमें, उसमें जिस तरह से आपने नेचर की तरफ तारतम्य जोड़ने की बात की, उसकी वैज्ञानिकता बताई, वो सब इतनी बड़ी सच्चाई है कि सबको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए और उस तरफ बढ़ना ही चाहिए। आपने इतने बड़े ज्ञान को छोटे से टाइम में बहुत अच्छे से बांधने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने आपकी शर्ट की तरफ खास ध्यान दिया क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो आपने खुद तैयार किया है उसका सूत काट के, तो वो बहुत क्रेडिटेबल है। किस तरह से सिंपल लाइफ में एक जिंदगी का पूरा मजा है, वो भी बहुत सुंदर था। मैं चाहती हूँ कि आपका फोन नंबर मुझे मिले, और मैं आजकल ऋग्वेद की पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहती हूँ। ये मेरा एक और रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। पूरे क्लब की तरफ से मैं आपको आज धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारी इस मीटिंग में शामिल हुए एज स्पीकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरू जी। इसके पहले जो मैं प्रोसीड करूं, मैं हमारे कुछ गेस्ट बाद में जुड़े हैं हमसे, तो सबसे पहले विभाकर राम तीर्थंकर जी, आपका वेलकम करता हूं। ग्रुप कैप्टन अश्विनी भाकू जी इज next week's speaker, so please block your day. You are going to listen Group Captain Ashwini Kumar Bhaku. He is the speaker on 19, and it is going to be amazing. I assure you all. So Ashwini ji, welcome. Then Lieutenant Colonel Sudhir Singh, he has joined from Sitamarhi, Muzaffarpur. So welcome. Then पास्ट प्रेसिडेंट मानतोष जी, रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड की तरफ से आपका वेलकम। गोवर्धन राउत जी, ये इंडिया पोस्ट से हैं, हर मीटिंग को हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देन पामी पुणे, सो पामी जी को हमारा धन्यवाद। DH दान सागर एंड हिरल पारिक, आप सबका रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड की मीटिंग में हार्दिक स्वागत। इसके बाद हमारे दो आइटम छोटे छोटे और बचते हैं। एक थॉट ऑफ द वीक व्हिच इज ट्रेडिशन ऑफ द रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड, सो आई इनवाइट रोटरियन संजय मर्चेंट फॉर दैट, फॉर थॉट ऑफ द वीक। ओवर टू संजय। Yeah, Colonel Sahab, Vikram is not there, so I just put in a small this thing. We may have different religions, different languages, different colors, but we are one race, the human race. That's great. It's really suit to the occasion and suit to the day. Thank you, Sanjay ji. Now this is time for the joke. It is also a tradition which is being followed meticulously by Rotary Club Pune Riverside. So I would like to invite Sandeep Bash ji. Over to Sandeep. Sandeep has had to leave early. Okay, so if he has gone, so we will skip this. And now we have come to last closing. If permission is there, I would like to adjourn the meeting. Okay, because already it's time 9:40. So should I adjourn the meeting? Yeah. Colonel. Yeah. Your tradition you said about the joke. Yeah. If Anand is not there. Yeah. Vivakar Ram Tirthankar is there. Please go ahead.
You want me to volunteer? Yes, yes, immediately. Please go ahead. When a plane was going, there were different nationalities in the plane. Okay. British, American, Indian, Russian, Czech, etc. So on the way, the pilot came out of the cockpit and told all the passengers, it is becoming heavy, so one of you will have to jump out. The British, he rose and said, long live the king, and he jumped out. The pilot went back to cockpit. After some time, again he came and again said the same thing. American rose up and said, long live democracy, and he jumped out. Then again after some time, when he came, the Indian rose up and said, Bharat Mata ki Jai, and he jumped out. And after again when he came, the Russian got up and he said, long live communism, and he pushed out the Czech person. Thank you very much. Thank you. Interesting. Thank you. So I am just closing the meeting. Thank you very much. Stay healthy, happy, and blessed. And please join in large number on 19 to listen. Our group captain Ashwini Kumar Bhaku, and he is the real hero of Kargil. He has fought, and his unit has got 6-7 colors. And he has got Visis Seva medal on account of his contribution in Kargil war. So please, it will be amazing experience. I will request all to please join on 19. So with your permission, I am leaving the meeting. Thank you very much.